Dear students, we were discussing how we can build Android applications using different building components. जिस तरह कोई भी इमारत जब हम बिल्ड करते हैं तो we have different constructing materials available to us. Every material that we use has its own place in the construction. हमारे पास जो ईंटें हैं they have some specific purpose जो कि हम लगाते हैं. We have wood, we have glass and number of other building materials that we can use in building our home or a structure. इसी तरीके से जब हम एंड्रॉयड की बात करते हैं या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चरल मटेरियल होता है जो कि हम अप्रोप्रिएट प्लेसेस पे यूज़ करके वी बिल्ड द कंप्लीट प्रोग्राम. सी या सी प्लस प्लस की अगर बात करें तो ये जो स्ट्रक्चरल मटेरियल है दैट कम्स इन फॉर्म ऑफ डिफाइनिंग वेरिएबल्स, यूजिंग लाइब्रेरीज, फंक्शंस, pointers, arrays and these things. Although most of them are also available in Android, लेकिन Android में जब हम structure की बात करते हैं तो that is bit different, that takes a different approach from the functional programming paradigm. और वो किस लिए? वो इसलिए भी because Android programming deals mostly with Java and Java is an object oriented programming. तो यहाँ पर हम function से ज़्यादा we look at objects, we look at classes and we look at the methods that defines the properties of those objects. लेकिन इस functional और object oriented paradigm के अलावा there is another difference that we see in Android programming and that is a clear distinction of how we can use different elements. For example, in Android we say that everything is an activity. और अगर हम इसको ये बहुत जेनेरिक टर्म हो गई, बहुत जनरल सी टर्म हो गई, इसको हम थोड़ा सा रिफाइन करें तो most of the programs that interact with the user are activity. उसमें होता ये है कि जब भी आप अपना फंक्शन या अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं तो आप कहते हैं कि this whatever your name is, the function's name is, और उसको आप एक्सटेंड करवा लेते हैं एक्टिविटी से. दैट मीन्स कि एक्टिविटी की वो तमाम प्रॉपर्टीज़ जो कि किसी भी एक्टिविटी को एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफाइन करती हैं वो आप इनहेरिट कर लेते हैं और उसको फिर आप या तो एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं और या आप उनको ओवरराइड कर देते हैं. फॉर एग्जांपल, जब भी आप कोई प्रोग्राम जो है वो एक्टिविटी से या आप जो भी फंक्शनैलिटी लिख रहे हैं उसको जब भी आप एक्टिविटी से एक्सटेंड करवाएंगे तो आपके पास इस तरह की चीज़ें जो एक्टिविटी की लाइफ साइकिल से या प्रोसेस की लाइफ साइकिल से रिलेटेड है वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी. फॉर एग्जांपल, जब ये प्रोग्राम सस्पेंड होगा तो व्हाट एक्टिविटीज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम शुड परफॉर्म. जब ये प्रोग्राम रिज्यूम होगा तो व्हाट आर द एक्टिविटीज़ दैट शुड बी परफॉर्म्ड. पॉज पे क्या करना है, स्टार्ट पे क्या करना है, जब प्रोग्राम फिनिश होगा तब क्या करना है. All these are part of the process life cycle या activity life cycle. इसके अलावा other structural elements या other building blocks that we have in Android and that help us write applications are background services. Background services are the one, जिस तरह हमने कहा कि most of the applications that interact with users are usually activities. इसी तरीके से वो processes जो background पे चलते हैं are usually extended from background services. Idea behind the background processes is that these are the activities, these are the functionalities that are being performed behind the user. और ये वो activities होती हैं जिसमें user की input जो है वो इतनी require नहीं होती. For example, हमने एक case discuss किया था where our mobile phone is publishing something on a very regular interval. In our particular example, that was the coordinates of the car or coordinates of the mobile phone itself. अब ये एक एक्टिविटी है जिसके लिए if you bother user every time, user probably wouldn't want कि इस तरीके से हो कि हर दफ़ा जब ये मैसेज पब्लिश होने लगे या हर दफ़ा जब ये SMS सेंड होने लगे तो मुझे बताया जाए कि ये एक मैसेज सेंड होने लगा, बिकॉज दिस इज़
पीरियोडिक एक्टिविटी से हमारी मुराद ये है कि दिस विल बी हैपनिंग आफ्टर एवरी लेट्स से 5 मिनट्स और 10 मिनट्स और वट एवर द फ्रीक्वेंसी यूजर डिफाइन। तो ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो बैकग्राउंड में रन होती रहती हैं और यूज़र इज़ नॉट बॉदर्ड अबाउट इट कि वो हर दफ़ा इनको अप्रूव करे इस एक्टिविटी को। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड बैकग्राउंड एक्टिविटी। जस्ट लाइक आपका वायरस स्कैनर जो है वो यू हैव ऑप्शन ऑफ स्कैनिंग योर ऑल योर फाइल्स जो कि आपके डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती हैं। आपके पास ये भी ऑप्शन होती है कि आप वायरस स्कैनर चला दें और आप एक एक फाइल को देखें कि वो प्रोसेस हो रही है, और या आप उसको एज अ बैकग्राउंड सर्विस चला दें सो दैट व्हेन यू मिनिमाइज इट इज़ रनिंग इन द बैकग्राउंड और वो तमाम फाइलें प्रोसेस करके एट द एंड रिजल्ट्स आपको शो करवा। तो similarly, whatever programs you write in Android, you have both the options. It only depends on the mode of the program. Yes, you can publish the coordinates in foreground, making an activity. लेकिन ये वो चीज़ है कि जो ongoing है और जो periodic intervals पर हमेशा होनी है। तो बजाय इसके कि आप अपनी मेन स्क्रीन को कंज्यूम रखें इस प्रोग्राम के लिए, आप उसे एज अ बैकग्राउंड सर्विस रन कर दें एंड you can use the main screen for other activities which can run in parallel. Still, there is a question here that yes, background services are there and background services are required to run in the background. लेकिन शायद नहीं, यकीनन there are instances कि जहाँ पर background services को आपको notify करने की ज़रूरत पेश आती है। यही वायरस स्कैनर की अगर हम एग्जांपल ले लें तो जब वायरस स्कैनिंग कंप्लीट हो जाती है तो एट द एंड इट विल टेल यू कि जी मैंने इतनी फाइल स्कैन की जिसमें से इतनी इन्फेक्टेड थी, इतनी क्लीन की या इतनी डिलीट कर दी गई बिकॉज दे वर अनरिपेयरेबल। तो ये आखिर में आपको एक स्टेटस मैसेज ज़रूर पॉपअप होता है। तो सिमिलरली बैकग्राउंड सर्विसेज भी आपको एक इस तरह की फैसिलिटी दे शुड प्रोवाइड कि जब भी एंड्रॉयड में समथिंग गोज आउट ऑफ हैंड या कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए जिसमें यूज़र को नोटिफाई करना ज़रूरी हो, और या अनएक्सपेक्टेड की जगह कोई भी ऐसा इवेंट हो जाए जिसमें यूज़र को नोटिफाई करना ज़रूरी हो, देयर शुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट। व्हाट इज़ दैट पॉसिबिलिटी? वी विल कम टू दैट इन अ बिट। बिफोर indulging into that, let me cover the rest of the building blocks that we have been discussing just to refresh your memories. So background services के अलावा another important building block that we have seen is intents. Intents are meant for communication. If you want two processes to communicate with each other, usually intents is the way to route. उसमें होता ये है कि आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर या आप अपने प्रोग्राम के अंदर इंटेंट्स डिफाइन कर देते हैं और वो इंटेंट्स जब फायर होते हैं तो प्रोग्राम्स ऑटोमेटिकली नो दैट हाउ टू हैंडल इट, एंड ऑटोमेटिकली इज काइंड ऑफ बिट मिसलीडिंग हियर. एक्चुअली these properties are defined inside your Android manifest.xml. अगर वो आपके लिखे हुए इंटेंट्स हैं तो ये आप प्रॉपर्टीज जो हैं वो Android manifest.xml के अंदर डिफाइन करते हैं कि अगर ये वाला इंटेंट फायर हो तो इसके अगेंस्ट एक्शन कौन सा लेना. तो इट्स काइंड ऑफ अप्रोच कि आपके पास क्लाइंट सर्वर अप्रोच आप इसको कह सकते हैं कि जी एक क्लाइंट जो है वो इंटेंट फायर कर रहा है एंड देन देयर इज अ सर्वर साइड जो कि इंटेंट को कंज्यूम कर रही है, बट इन रियलिटी एवरीथिंग इज within one operating system and it's just sort of message passing mechanism इसको कह लें आप, इसको communication mechanism कह लें. The reality is कि you have some defined intents within Android operating system or over and above you can define your own intents too. और in intents के again there are some activities that are registered, just like कि आप किसी वेब पेज पे जब क्लिक करते हो तो उसके अगेंस्ट एक रजिस्टर्ड प्रोग्राम होता है जो कि उस वेब पेज को हैंडल करता है. वो इंटरनेट एक्सप्लोरर भी हो सकता है, वो फायरफॉक्स भी हो सकता है, वो सफारी भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपके डेस्कटॉप की सेटिंग कैसी है. सिमिलरली जब भी इंटेंट्स फायर होते हैं तो उसके अगेंस्ट भी एक रजिस्टर्ड एक्टिविटी होती है जो उस
प्रोग्राम को या उस जो आपने डाटा थ्रो कर रहे हैं उसको हैंडल करती है. हमने अपनी एग्जांपल में देखा कि हमने एक वेब पेज का एड्रेस डिफाइन किया एंड देन वी फायर्ड एन इंटेंट और ऑटोमेटिकली जो बिल्ट इन ब्राउज़र था उसने उस इंटेंट को हैंडल किया. इसी तरह से जब हमने कोई कॉल करने की कोशिश की तो हमने वो नंबर डिफाइन किया और हमने अप्रोप्रिएट इंटेंट को जब फायर किया तो ऑटोमेटिकली डायलर ने उसको पिकअप कर लिया. तो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ हाउ इंटेंट हैंडल थिंग्स. और जस्ट लाइक ये जो हमारी मैं डेस्कटॉप के साथ इसको थोड़ा सा कोलैबोरेट कर रहा हूँ, डेस्कटॉप के साथ इसको ज़रा मैच करके आपको बता रहा हूँ. तो जस्ट लाइक डेस्कटॉप इन्वायरमेंट अगर किसी एक प्रोग्राम के अगेंस्ट या किसी एक एक्शन के अगेंस्ट मल्टीपल प्रोग्राम्स रजिस्टर्ड हों, फॉर एग्जांपल फॉर ओपनिंग वेब पेज अगर उसके अगेंस्ट मल्टीपल ब्राउज़र्स रजिस्टर्ड हों, या अगर किसी डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट मल्टीपल व्यूअर रजिस्टर्ड हों, तो वो यूज़र के पास ऑप्शन आ जाती है कि आप किसके थ्रू इसको ओपन करना चाहते हैं. तो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, डेस्कटॉप के सिनेरियो में होता ये है कि आपके पास ऑप्शंस उन केसेस में आती है जब किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के अगेंस्ट कुछ भी रजिस्टर्ड ना हो. फॉर एग्जांपल आप एक अननोन टाइप खोल रहे हो और उसके अगेंस्ट कोई भी प्रोग्राम रजिस्टर्ड ना हो, तो वो आपको पूछ लेता है कि आप कौन सा प्रोग्राम यूज़ करना चाहेंगे टू ओपन दीज काइंड ऑफ फाइल्स, और आप उस डिसीजन को परमानेंट कर सकते हैं. अदरवाइज डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में देयर इज़ ऑलवेज अ डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम. इसीलिए अगर आप अपना ब्राउज़र कभी खोलें और वो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र आपका ना हो तो वो आपसे हमेशा पूछता है कि वी हैव डिटेक्टेड दैट दिस ब्राउज़र इज़ नॉट योर डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, वुड यू लाइक टू मेक इट डिफ़ॉल्ट. और डिफ़ॉल्ट होने से फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप किसी वेब पेज को क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ब्राउज़र खुल जाए. सिमिलरली इन एंड्रॉयड एनवायरनमेंट जब इंटेंट फायर होते हैं तो उनके अगेंस्ट इंटेंट फिल्टर्स डिफाइन होते हैं जो कि उन एक्टिविटीज़ को मैप करते हैं, उन इंटेंट्स को मैप करते हैं टू द एक्टिविटीज़ कि कौन सा फिल्टर किस एक्टिविटी पे या किस इंटेंट पे अप्लाई होगा. एंड वन ऑफ द फिल्टर्स इज डिफ़ॉल्ट. दैट इज व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट एक्शन फॉर दिस काइंड ऑफ इंटेंट. और अगर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होगी तो वो डिफ़ॉल्ट वाला जो है वो एक्शन परफॉर्म हो जाएगा. देन हम इंटेंट से थोड़ा आगे बढ़े एंड वी टॉक्ड अबाउट ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स. ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स इज टाइप ऑफ प्रोग्राम्स जो कि सिस्टम वाइड कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करते हैं. ब्रॉडकास्ट को समझने से पहले इट्स इंपॉर्टेंट दैट आई गिव यू एन आइडिया अबाउट व्हाट इज यूनिकास्ट. और इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इंटरनेट इज ऑफ कोर्स अ सिंपलर मीडिया फ्रॉम वेयर वी कैन अंडरस्टैंड. In unicast model, the communication is between two parties. One is sender and other is receiver. When sender sends a packet, for example, if our sender is A and receiver is B, when sender sends the packet, it clearly marks the packet for the B. And B, when it sees the packet coming towards its way marked as B, it picks up and read it. So this is a unicast model. One sender, one receiver, the packets that are being exchanged are clearly marked that which destination they are going to. This is the idea of unicast. So on internet, if you know which server you want to communicate with, so you send that communication request to that particular server and that particular server responds to you. अगर हम इंटरनेट की ज़्यादा डिटेल्स में ना जाएं कि इंटरनेट किस तरीके से काम करता है और हम ज़रा सरफेस पे ही रहें, तो व्हेन आई राइट vu.edu.pk तो मेरा कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली एक पैकेट मार्क करता है फॉर द सर्वर दैट इज़ रनिंग vu.edu.pk और vu.edu.pk मेरे कंप्यूटर को डायरेक्टली डाटा भेज देता है. तो दिस इज़ यूनिकास्ट कम्युनिकेशन. दैट इज़ we are talking directly, these two computers are talking directly. Now my web browser is fetching data directly from VU server and VU server is sending data to my computer. So ये unicast model. That is, you are sending data to a particular receiver and you know who will be receiving it.
दूसरा मॉडल है ब्रॉडकास्ट का मॉडल, which is also widely used. Broadcast model is used when you have multiple receivers. और या आपका रिसीवर तो एक ही है but you don't know which exactly is your receiver. So in those cases आप करते ये हैं that you broadcast all the traffic, या आपकी जो communication है वो आप broadcast कर देते हैं, और whichever process would like to intercept the packet will intercept it, open it and read it whether it is relevant to him or not. तो ये broadcast का मॉडल होता है. एंड्रॉयड में ब्रॉडकास्ट किस लिए इंपॉर्टेंट है? एंड्रॉयड में ब्रॉडकास्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज एनी इवेंट दैट हैपन्स इनसाइड द एंड्रॉयड सिस्टम इज ब्रॉडकास्टेड ऑन सिस्टम. तो जब भी कोई इवेंट हो रहा होता है, जब भी कोई आई विल यूज द वर्ड नोटिफिकेशन on the disk that will confuse you a little bit on the topic जो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे. लेकिन जब भी कोई इवेंट कंप्लीट होता है तो देयर इज अ नोटिफिकेशन दैट इज पास टू एवरीबॉडी. एक ब्रॉडकास्ट मैसेज जो है वो सिस्टम वाइड ब्रॉडकास्ट होता है दैट दिस प्रोसेस हैज कंप्लीटेड, या एनी अदर एक्शन दैट हैज बीन परफॉर्म्ड इनसाइड दैट एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट. और बेस्ड ऑन दैट a process who is listening for that event can take some action. For example, last time हमने एक sample program लिखा था जिसमें हमने SMS send और receive की example की. Now SMS जब आपके सिस्टम में रिसीव होता है तो एक सिस्टम वाइड इवेंट कॉल होता है जिसकी अगेंस्ट एनी प्रोसेस कैन टेक सम एक्शन. तो जब भी SMS रिसीव हुआ, एक मैसेज ब्रॉडकास्ट हुआ दैट नाउ एन SMS हैज बीन रिसीव्ड, और अगर कोई इवेंट या मल्टीपल इवेंट्स इस प्रोसेस का वेट कर रहे थे, इस एक्शन का वेट कर रहे थे, देन दे कैन गो ऑन एंड टेक सम एक्शन ऑन इट. अगर हम वो अपने सैम्पल प्रोग्राम को कंटिन्यू करें तो हम ये चाह रहे थे कि जब भी वो पर्टिकुलर SMS आए तो व्हाट वी विल डू इज दैट वी विल रीड इट, हम उसमें से अपने कोऑर्डिनेट एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड देन वी विल डिलीट दैट SMS बिकॉज इट्स पर्पस हैज बीन डन. तो अब सिस्टम वाइड इवेंट्स में ये किस तरीके से काम करेगा? सिस्टम वाइड इवेंट्स में इस तरीके से काम करेगा कि जब SMS रिसीव होगा तो एक ब्रॉडकास्ट मैसेज फ्लोट होगा. उस ब्रॉडकास्ट मैसेज को लिसन करने के लिए हमारे पास ब्रॉडकास्ट रिसीवर हैं जो कि उस मैसेज को इंटरसेप्ट करेंगे, and then they will say okay, an SMS has been received, do I have an action against this receiving of SMS, और अगर उन्हें वो एक्शन मिल जाता है तो then they will perform that action. So this is how the sequence of event goes. As you have seen, या आपने इन एग्जाम्पल से आपको अंदाजा होगा कि SMS रिसीविंग में बहुत सारे स्ट्रक्चरल ब्लॉक्स मिलके काम कर रहे हैं. वी हैव बैकग्राउंड सर्विसेज दैट इज अ पीस ऑफ प्रोग्राम दैट इज वेटिंग फॉर एन SMS टू बी रिसीव्ड. फिर हमारे पास एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर है जो कि रजिस्टर हुआ है फॉर एनी SMS मैसेज दैट विल कम इन एंड दैट इट विल पिक इट अप और उसके अगेंस्ट वो एक्शन ले. नाउ लेट्स मूव ऑन एंड सी व्हाट अदर ब्लॉक्स do we use when we are writing Android programs. और उसमें हम अपनी ये थोड़ी देर पहले की डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए ये चीज़ देखते हैं कि अगर हमारे पास बैकग्राउंड सर्विसेज हैं और वो नोटिफाई करने की कोशिश करती हैं हमें कोई चीज़, तो हाउ विल दे अचीव दिस? इस काम के लिए इन Android there is a specific construct that is called notifications. नोटिफिकेशंस अगर आपके पास एंड्रॉयड का फ़ोन है या एंड्रॉयड के एमुलेटर पे भी आप देखें तो देयर इज़ अ टॉप बार ऑन योर एंड्रॉयड फ़ोन जो कि व्हेन देयर इज़ अ नोटिफिकेशन इनसाइड योर, आपके फ़ोन को अगर कोई नोटिफिकेशन रिसीव होता है फ्रॉम बैकग्राउंड सर्विस या फ्रॉम एक्सटर्नल एंटिटी, तो वो जो है दैट नोटिफिकेशन बार विल स्टार्ट शोइंग यू समथिंग. यूजुअली इट्स एन आइकॉन and a small text that describes the message. For example, there are few antivirus programs
जो कि एक्टिवली आपके सिस्टम को बैकग्राउंड में स्कैन कर रहे होते हैं, और जब भी आप कोई नया पैकेज इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में तो दे विल स्कैन इट फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ वायरसेस, और उसको वो आपको बता देते हैं दैट ओके दिस इज़ फ्री ऑफ एनी वायरस, या अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आपको नोटिफाई कर देते हैं। एंड ऑल दिस अपीयर्स ऑन योर स्टेटस ऑन योर नोटिफिकेशन बार, also termed as status notification bar. Status notification bar के components क्या हैं? You can define an icon जो कि उसके साथ appear होगा, then a small message जो कि as a ticker bar चलेगा उस notification bar पे, then there can be an extended message, और उस extended message के साथ एक activity भी associate हो सकती है through intent. So for example आपके पास वही वायरस की वायरस कहने की अगर एग्जांपल लें तो इफ़ वायरस फाइंड्स अ प्रॉब्लम इट विल शो यू एन आइकॉन इन स्टेटस बार सेइंग प्रॉब्लम फाउंड विद दिस फाइल। आप जब उसे एक्सपैंड करेंगे मैसेज को तो इट विल से दैट दिस फाइल इज़ इन्फेक्टेड विद सच एंड सच वायरस, डू यू वांट टू डिलीट इट। और अगर आप उसे डिलीट करेंगे तो उसके अगेंस्ट एक एक्टिविटी लॉन्च होगी इंटेंट के थ्रू जो कि उस फाइल को डिलीट करेगी। तो these are the few components, or these are the 4 components that goes inside status notification: the icon, the ticker bar message, the extended message, and the activity that is associated with that extended message जो आप इंटेंट के थ्रू एक्टिवेट करवा सकते हैं। So these 4 components are part of our status notification. Now, use of status notification can be either it can be either used by an activity or it can be used by background service. लेकिन चूंकि जो आपकी एक्टिविटी होती है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिफाइन किया कि इट इज़ मोस्टली ऑन फ्रंट एंड इट इज़ इंटरेक्टिंग विद यूज़र वेरी हैविली, तो मोस्टली जो हम नोटिफिकेशंस यूज़ करते हैं दैट इज़ फॉर बैकग्राउंड प्रोसेस। जब बैकग्राउंड प्रोसेसेस की बात करते हैं या बैकग्राउंड सर्विसेज की बात करते हैं तो हम उन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करते हैं। वन ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस दैट इज इम्पोज्ड ऑन बैकग्राउंड प्रोसेस इज दैट बैकग्राउंड प्रोसेस शुड नॉट इन्वोक एनी एक्टिविटी बाय इटसेल्फ। बैकग्राउंड प्रोसेस जो है वो कोई भी एक्टिविटी खुद से इनिशिएट ना करे, बल्कि किसी भी एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल यही एक्टिविटी के जी एक फ़ाइल जो है इन्फेक्टेड है और उसको मैंने डिलीट करना है, या एक पैकेज इन्फेक्टेड है और मैंने उसको सिस्टम से अनइंस्टॉल करना है, तो कोई भी एक्टिविटी जो है वो यूज़र इंटरेक्शन के थ्रू इनिशिएट होनी चाहिए। और यूज़र से इंटरेक्ट करने के लिए बैकग्राउंड सर्विसेज के पास ये मेथड है कि वो एक नोटिफिकेशन बार में अपना स्टेटस मैसेज या अपना टिकर मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवाएं, और उसके जो एक्सटेंडेड मैसेज के थ्रू with user interaction अब एक activity launch करवाएं। So the background services cannot initiate any activity by itself, and they will go through this notification mechanism in order to get user intention, get input from user, and launch an activity if so desired. On the screen, I am showing you a simple example of how notification bar looks like and how the extended message is associated with notification bar. On the top left hand side, you are seeing a notification bar simply, और उस notification bar पे you are seeing a simple icon. Now this simple icon stands for that you have received a message. ठीक है, आपकी SMS में अगर आप Android का फ़ोन यूज़ करते हैं तो you already have seen this status messages and SMS notifications so many times. तो जब आप इसको देखते हैं and you see an envelope on your top left hand side, तो आपको पता लग जाता है कि ये एक SMS रिसीव हुआ। And when you extend this notification bar, so you will see कि जी उसमें what is the message. In our case, the message is sent by a person named Travis, and the message is, where are you? So this is an SMS inquiring our location, और वो extended message है। So this is a simple example of how the notification bar icon looks like, and then how the extended message look like.
ऑफ कोर्स यू कैन ऑल्सो डू दिस कि वो जो नोटिफिकेशन बार में आपका जो आइकॉन आ रहा है उसके साथ टिकर मैसेज में आपके ये मैसेज भी अपीयर हो रहा, दैट इफ यूजर डजंट वांट टू डू सी द एक्सटेंडेड मैसेज, उसको वही टिकर, बिकॉज दिस इज अ वेरी स्मॉल मैसेज, तो आप वो टिकर बार में भी आसानी रीड कर सकते हैं. बट nonetheless you can use both options. You can use it in you can show it in the ticker bar, plus आपके पास extended view की भी facility है, और extended view के साथ आप कोई activity भी associate कर सकते हैं. Now in this particular case अगर इसे मैं antivirus के साथ change करूं, तो जो envelope का icon है जो कि SMS show कर रहा है, उसकी जगह मैं अपना एक custom icon लगा के ticker bar में एक message run कर दूंगा that file infected, और उसके बाद जो एक्सटेंडेड मैसेज है उसमें मैं उस फाइल की डिटेल, किस वायरस से वो इन्फेक्ट है, एंड व्हाट इज़ द पॉसिबल एक्शन आई कैन आउटलाइन ऑल देयर. और उसके बाद अगर यूज़र एक्शन लेगा वो, तो मैं इंटेंट्स के थ्रू एक एक्टिविटी लॉन्च करवा के आई विल परफॉर्म द स्पेसिफाइड एक्शन. तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ स्टेटस नोटिफिकेशन बार, जिसमें हम या स्टेटस नोटिफिकेशन के ये कंपोनेंट्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन वी क्रिएट अ स्टेटस नोटिफिकेशन. हमारे पास हमने एक प्रोग्राम लिखा जिसमें वी रोट द एंटीवायरस फंक्शनैलिटी, या हमने एक प्रोग्राम लिखा जिस तरह हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था दैट वी विल राइट अ प्रोग्राम फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग SMS. तो वी आर राइटिंग सच अ प्रोग्राम एंड वी वांट कि जब भी कोई मैसेज रिसीव हो, बिकॉज आर रिसीव SMS इज़ अ बैकग्राउंड एक्टिविटी, तो हम ये चाह रहे हैं कि जब भी हमारे पास कोई मैसेज रिसीव हो तो हम उसको यही मैकेनिज़्म यूज़ करते हुए, स्टेटस नोटिफिकेशन का मैकेनिज़्म यूज़ करते हुए स्टेटस बार पे उसको नोटिफाई करवाएं, और अगर यूज़र ने उसको रिप्लाई करना है तो देन इंटेंट्स और एक्टिविटी को यूज़ करते हुए उसका रिप्लाई भेज दें. तो टू राइट notification, status notification, you will be using two classes. The first one is the notification class and the second one is notification manager. अब इनको one by one देख लेते हैं कि what is the purpose of the notification class and what is the purpose of notification manager. Notification class lets you define the essential properties of a notification. Yeah, to be more general, a notification class lets you define the properties of a notification. अब उन properties में क्या आ जाता है? उन properties में ये आ जाता है कि आपने आइकॉन कौन सा शो करवाना है, आपने टिकर मैसेज जो उसमें अपीयर हो रहा होगा व्हाट वुड दैट बी, एक्सटेंडेड मैसेज में क्या आएगा, और अगर आपने उसके साथ कोई साउंड प्ले करनी है या आपने कोई और एक्शन लेना है तो व्हाट वुड दैट एक्शन बी. सेकेंड पार्ट ऑफ दिस इज द नोटिफिकेशन मैनेजर. And notification manager is the class that is responsible for handling all the notification within the Android. So once you define the properties of the notification, you use the notification manager class to appropriately show it on the screen and in the notification bar. अब आप इसको अचीव किस तरीके से करेंगे? आप इसको इस तरीके से अचीव करेंगे, just like I am showing you the code snippet on the screen, that we will first get a reference to notification manager. Notification manager का reference लेने का क्या तरीका है? We will create a notification service string and then we will create instance of the class notification manager. Notification manager का instance create करने का या notification को use करने का mechanism ये है कि notification manager की class define करके we will be using get system services. So all the system services that are available to us through the system manager class will be on our disposal then. And then we will instantiate the notification. Notification में आप देख लें कि हम we are trying to build the different components of the notification. First, our first element is our icon. That is what will be our notification icon that will appear in the notification bar. Then the second is what will be our character sequence or the message that we will be trying to show. And the third is that कितनी देर के लिए pen जो उसका parameter है, that for how long this message will stay there on the notification bar. Once we have
टेकन ऑल दिस, उसके बाद हम एक नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसको हम ये तमाम प्रॉपर्टीज जो हैं पास कर देंगे, एंड दैट विल क्रिएट आवर नोटिफिकेशन. वंस आवर नोटिफिकेशन इज क्रिएटेड, second step is how we will be defined the extended message. ये तो वो कंपोनेंट्स हो गए जो ऊपर नोटिफिकेशन बार पे आ रहे हैं, हमारा टिकर मैसेज वहाँ पे जो चल रहा होगा, दैट इज़ वन कंपोनेंट. आइकॉन जो आप उसके अगेंस्ट शो कर रहे होंगे, दैट इज़ द सेकंड कंपोनेंट. एंड हाउ लॉन्ग दैट मैसेज विल स्टे देयर, दैट इज़ द थर्ड कंपोनेंट. लेकिन जब आप उस नोटिफिकेशन जो बाहर अपीयर हो रही होगी, उसमें जो मैसेज आ रहा होगा, उसको सेलेक्ट करेंगे, व्हाट विल हैपन देन, आपका जो एक्सपेंडेड मैसेज है उसकी शेप क्या होगी. और अगर आपने उसके थ्रू अगर कोई एक्टिविटी लॉन्च करवानी है, तो हाउ विल यू लॉन्च दैट एक्टिविटी. तो उसके अगेंस्ट इस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए व्हाट यू विल डू इज राइट द कोड दैट इज सिमिलर टू व्हाट आई एम शोइंग यू ऑन द स्क्रीन अगेन, दैट वी हैव अ टाइटल of the notification that we are going to show it to the user, and then the text that is associated with that expanded message, या वो जो उसके अंदर show हो रहा होगा, and then we will have an intent associated with this expanded message. इस intent में जो हम इस slide में define कर रहे हैं और previous intents जो हमने आज तक पढ़े, उनमें एक छोटा सा difference है, और ये difference हमने जब वो SMS send and receive का प्रोग्राम लिखा था तब भी हमने देखा कि इस इंटेंट्स में एक स्पेशल काइंड ऑफ कैटेगरी हमने इंट्रोड्यूस करवाई, दैट इज पेंडिंग इंटेंट. नाउ पेंडिंग इंटेंट इज काइंड ऑफ इंटेंट दैट इज वेटिंग फॉर सम इवेंट टू हैपन. एक तो इंटेंट उस काइंड का होगा जो कि हमने पहले डिस्क्राइब किए, दैट आई वांट टू ओपन अ वेब पेज इन अ ब्राउजर, तो आई डायरेक्टली पास दैट इंफॉर्मेशन, आई फायर द इंटेंट, और जो मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वो लॉन्च हो जाएगा. या आई वांट टू डायल अ नंबर, तो मैं डाटा उसका प्रॉपर्ली डिफाइन करता हूँ, आई फायर द इंटेंट, और डायलर जो है वो नंबर डायल कर देगा मेरे लिए. लेकिन इस पर्टिकुलर केस में माई इंटेंट्स आर वेटिंग फॉर सम एक्शन टू हैपन सो दैट दे कैन गेट फायर्ड अगेंस्ट, और वो उस एक्शन को हैंडल कर सके. तो इन दिस स्लाइड, this is kind of event, or this is kind of event intent that we are using to handle our notifications. And at the very last we have the notification, and we are passing our context. In context we had our context title and our context text. हम उसको context text पास कर रहे हैं, हम अपना context title पास कर रहे हैं, and then the last thing we are passing to this is our intent. तो हमारा जो expanded message है वो complete हो गया with the title, with the text and the intent that is going to handle this. And finally what we will do is that we will call the notify method, and notify method will post this or show this notification on the screen. So this is briefly the procedure, this is briefly the code that how we will write our notification. We will be using two classes. First is the notification and the second one is notification manager. Notification class जो है वो हमारी properties set करेगी for our notification, और notification manager जो है that will take care of our notifications within the Android. Notification को describe करने के लिए जो जिन properties की हमें ज़रूरत पड़ती है, that is our icon, our ticker text, and when or how long this message will stay on the screen. ये तो brief जो notification का structure है उसके components हो गए. Then in addition, if the expanded view of the message or expanded view of the notification is handled through context, और context में हम उसका title set करते हैं, हम उसका text set करते हैं, and then we finally tells that what are the intents that will handle the activity that will happen here. तो in case अगर यहाँ पर हम अगर ये SMS हमें receive हुआ है और हम इसको reply करना चाहते हैं, and we click on reply, और या अगर ये एंटीवायरस का मैसेज था और हम अपने फाइल को डिलीट करना चाहते हैं, and we click on delete the file or we touch the button delete file, so then what are the actions that will be performed,
and what are the processes or what are the activities that will take care of it. That is part of the expanded view. This is briefly how we will be going to handle our notification in our system. Notification के अलावा another interesting building block is in Android is widgets. लेकिन widget पे move करने से पहले I should also mention that we can also do some very fancy stuff with our notification. Fancy stuff से मेरी मुराद ये है that we can make the phone play sound, or we can make its light flash, or we can make it vibrate. We can do all these things for our programs too. हम जो अपनी custom notifications लिखेंगे हम उनके against भी ये तमाम actions perform कर सकते हैं based on our own imagination or our own creativity is the limit कि हम क्या करना चाह रहे हैं. लेकिन in addition to showing message, in addition to showing a ticker, in addition to showing an icon, in addition to associating an activity, we can also play a sound, we can also make it vibrate, or we can also make its light flash. That is up to us. Ab notifications is an interesting example of using background services. Background services जिस तरह मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि background services by default are bound or are required to interact with user through notification services. तो वो खुद से कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकती. अगर उन्होंने कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो दे विल हैव टू गो थ्रू द यूज़र, और उसका तरीका ये है कि वो यूज़र को एक नोटिफिकेशन मैसेज सेंड करें और वो नोटिफिकेशन मैसेज के साथ एक एक्टिविटी एसोसिएटेड हो जो कि expanded view में if user decides to launch that activity, he or she would be able to launch that. Now let's move on to another topic जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने mention भी कर दिया, that is called widgets. Now what are widgets? Widgets are special programs that stay on your home screen और उनकी speciality ये होती है कि they get periodically updated. उनको periodically data feed होता है and then they display it on the screen. इसकी example अगर आप देखना चाहें तो your weather services widgets are available. कि आपकी home screen पे और Android में in most Android phones this widgets are available कि आप जब उसको उसकी home screen पे you can attach this widget and they keep on telling you how is the weather outside. In addition वो आपको ये भी बता देते हैं कि what is the predicted weather for next few days, or if you have associated additional locations with them, so they will also let you know the weather on those locations. So this widget periodically fetches data from a server, or in अगर उसका model different है तो the server periodically broadcast the information and your phone receives it and show you on the screen. तो ये एक example widget है. Similarly आपको जो हम वो एक कार ट्रैकिंग सिस्टम की बात कर रहे थे तो अगर आप उसको सोचें तो वो भी एक सॉर्ट ऑफ विजिट ही है, बिकॉज अगर हम विजिट को बड़े जनरल टर्म्स में डिफाइन करें और कहें कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो पीरियडिकली अपडेट होता है तो आवर कार ट्रैकिंग सिस्टम इज़ द सेम काइंड ऑफ थिंग. ठीक है ना कि ये हम थोड़ी थोड़ी देर बाद उससे एक कोऑर्डिनेट्स रिसीव करते हैं, वी प्रोसेस दोज कोऑर्डिनेट्स एंड वी शो इट ऑन द मैप. तो जब भी हम उस विजिट्स को लॉन्च करेंगे तो इट विल लेट अस नो द करंट लोकेशन ऑफ आवर कार. तो विजिट इज a special kind of program that sits on your home screen and it gets updated periodically. अब widgets को create करने के लिए what are the components, how we can create widgets, उसको हम देख लेते हैं. And in a brief introduction to widgets we will see कि जी कौन से components हैं that we will need to play with in order to create widgets. विजिट्स अपनी इंफॉर्मेशन किस तरीके से रिट्रीव करते हैं और अगर विजिट्स की कोई लाइफ साइकिल है तो व्हाट वुड दैट बी. बिकॉज आप अगर सोचें तो विजिट इज येट अनदर काइंड ऑफ एक्टिविटी. जिस तरह आप एक प्रोसेस लिखते हैं, अब यूर दिस कोऑर्डिनेट और कार ट्रैकिंग प्रोग्राम कैन बी आल्सो रिटन एज अ बैकग्राउंड सर्विस
it can be written as an activity, and it can also be written as a widget. The only difference between कि ये किस में लिखा जाएगा, तो उसमें डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट जो है वो ये है कि आप उसको किस तरीके से यूज़ करना चाह रहे हैं. अगर आप उसको ये चाहते हैं कि जब भी मैं वो प्रोग्राम खोलूं मुझे एक अपडेटेड स्टेटस फ़ौरन ही मिल जाएगा, तो देन मे बी यू विल बी राइटिंग इट एज अ विजेट, क्योंकि वो आपकी होम स्क्रीन पे होगा, आप उसमें ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो डाटा अपडेट हो रहा होगा, एंड व्हेन एवर यू विल लॉन्च दैट विजेट तो आपको वो जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन होगी अबाउट द कार ट्रैकिंग दैट विल बी अवेलेबल टू यू. अगर आप चाहते हैं कि ये एक ऐसा प्रोग्राम हो जो मेरे डेस्कटॉप पे या मेरे मोबाइल फ़ोन के जो होम स्क्रीन है उस पर हमेशा चलता रहे, बट इट वुडंट बी विजेट, तो वो एक एक्टिविटी बन जाएगी. दैट इज देयर इज अ प्रोग्राम दैट विल बी ऑलवेज रनिंग ऑन योर मोबाइल. थर्ड सिनेरियो जो कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, दैट इज कि ये एक ऐसा प्रोग्राम हो जो कि बैकग्राउंड में चलता रहे और डाटा कलेक्ट करता रहे, एंड व्हेन एवर आई रिक्वायर इट विल correlate all the data and show me on the screen. So then it will become a service, rather a service and an activity together. ये एक hybrid example हो जाएगी of a service and an activity. वो किस तरीके से? वो इस तरीके से कि जो सर्विस है जो कि आपकी बैकग्राउंड में रन कर रही है, all it is doing is collecting data for you. It will identify the appropriate SMS, open them, retrieve coordinates from them and then delete it. So all it is doing is collecting data for you. और उसके अगेंस्ट जो आपकी एक्टिविटी है, what that will do is that it will gather all the data, that will read all the data and show it on the screen. तो ये different kind of methods हैं, ये different kind of forms हैं जो आपका प्रोग्राम ले सकता है. Of course some of them are more appropriate for your प्रोग्राम देन अदर्स. तो ये एक वो डिसीजन है जो कि आप जब प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो बेस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ द रिक्वायरमेंट्स यू आर प्रेजेंटेड विद, उसकी बेस पर आप एक डिसीजन लेते हैं वेदर दिस प्रोग्राम विल बी अ विजेट, वेदर दिस प्रोग्राम विल बी अ बैकग्राउंड एक्टिविटी, और वेदर दिस प्रोग्राम विल बी एन एक्टिविटी इटसेल्फ. वेदर सर्विसेज की अगर हम एग्जांपल लें तो दिस इज अ विजेट बिकॉज दिस इज समथिंग दैट you want this information to be readily available. That is, you go to the home screen and it will tells you that this is how the weather is outside. तो और ये वो information है जिसने periodically update भी होना है. तो इसलिए हमने ये decide किया कि ये इस प्रोग्राम को एक widget होना चाहिए. अब widget को जब हम write करते हैं तो उसमें 2-3 different तरह की files जो हैं वो involve हो जाती हैं. उसमें एक तो हमारा एंड्रॉयड manifest.xml इन्वॉल्व होती है, एंड देन देयर आर couple of other files that gets involved in process of writing the widget. What are these files? Let's see on the screen, on the slide, that what are these files that get involved in writing a widget. The first file that we will be manipulating in writing a widget is app widget provider info. This is the file that describes the property of the widget. कि उसका size क्या है, whether it is fixed, और उसकी update frequency क्या है. We want it to be updated every 5 minutes, we want it to be updated every 2 minutes, या उसकी frequency कम है, ज़्यादा है. So what is that fixed update frequency that this widget will be working on? तो हमारी widget की properties that goes inside the file that is called app widget provider info. Then we come across another interesting element, and that is our broadcast receiver again. Broadcast receiver, अगर आपने अभी तक guess नहीं किया तो now it's in front of you. Broadcast receiver has to come in because this is again we are receiving some information from server, from an external entity, because widget की property ये है कि it has to be updated at a fixed interval. तो जब एक फिक्स इंटरवल पे कोई चीज़ आपके पास एक इंफॉर्मेशन आ रही है, तो अगेन जब आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी तो वो सिस्टम वाइड ब्रॉडकास्ट होगी दैट दिस इंफॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव्ड, एंड हूएवर प्रोसेस जो कि उसको एंटरटेन करना चाहे उसको एंटरटेन कर.
तो आपको जब आप एक विजेट लिखेंगे तो आप उसके साथ एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर भी अटैच करेंगे, सो दैट व्हेन द इंफॉर्मेशन कम्स इन द ब्रॉडकास्ट रिसीवर विल पिक इट एंड update the screen or store it appropriately, whatever the program model is. तो हमारे पास एक XML जो पहले फाइल मैंने डिस्क्राइब की, उससे एडिशनल हमारे पास एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर भी है. ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो है वो ऐप विजेट प्रोवाइडर को एक्सटेंड करेगा. नाउ देयर इज अ डिफरेंस हियर. हमारे पास जो ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर है दैट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर काइंड एंड दैट particular kind is app widget provider. Why this one? Because app widget providers provides us with the additional methods that are useful in writing a widget. तो इसलिए हम जो हमारा broadcast receiver है उसको extend करवाते हैं with app widget provider so that we can get access to other methods that are helpful for us in manipulating the widget. वो methods क्या हैं हम उन पे थोड़ी देर में आते हैं. But before discussing that, I would like to mention the last component, that is not last but another major component which comes into play when we are talking about widgets, and that is our Android manifest.xml. हम Android manifest.xml फाइल का इस widgets के केस में क्या रोल है? वो ये रोल है कि हमारी जो सारी कॉन्फ़िगरेशन है ऐप विजेट की that resides inside app manifest.xml. तो ऐप विजेट की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है वो हम इसके अंदर डिफाइन करें. तो हमारे पास पहली फाइल आ गई दैट इज ऐप विजेट प्रोवाइडर इन्फो दैट डिस्क्राइब्स द प्रॉपर्टी ऑफ आवर ऐप विजेट. और देन वी हैव ऐप एंड्रॉयड manifest.xml दैट डिफाइंस द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऐप विजेट. एंड देन वी हैव अ ब्रॉडकास्ट रिसीवर दैट एक्सटेंड ऐप विजेट प्रोवाइडर so that we can get hooked to the additional methods that are associated with the widget. अब विजेट के साथ एक और प्रॉब्लम भी है एंड दैट इज दैट विजेट स्टेज ऑन द होम स्क्रीन. जब आप कोई भी चीज़ या जब आप कोई भी प्रोग्राम होम स्क्रीन पे लगाते हैं तो आपने वो इफेक्ट देख लिया होगा इन आवर अर्लियर डिस्कशन कि जब भी कोई एक्टिविटी होम स्क्रीन पे आती है तो इट टेक्स कंट्रोल ऑफ द होम स्क्रीन एंड देन नो अदर प्रोग्राम्स कैन इंटरफेयर विद इट. और इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो कंसिडरेशन है जो कि हम बहुत कम डिस्कस की हमने जब भी हमने प्रोग्राम्स लिखे सारे एंड्रॉयड के, दैट इज़ पावर कंजम्पशन. पावर कंजम्पशन जब भी एक आप प्रोसेस लॉन्च करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है. और अब हम एक ऐसी एक्टिविटी की बात कर रहे हैं जिसमें हम एडवोकेट कर रहे हैं कि दिस इज़ एन ऑलवेज ऑन मॉडल. ये ऐसा मॉडल है या एक ऐसी एक्टिविटी है या एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमेशा आपकी होम स्क्रीन पे रहेगा और हमेशा चलता रहेगा. तो बाय डिफॉल्ट वी शुड बी कंसर्न्ड अबाउट कि हाउ मच पावर दिस विजेट विल कंज्यूम या हाउ मच पावर दिस प्रोसेस विल कंज्यूम. तो गुड न्यूज़ हेयर इज कि जब आप विजेट राइट करते हैं तो वो एक अपना प्रोसेस नहीं बनाता बल्कि वो होम स्क्रीन के प्रोसेस का पार्ट बन जाता है. तो डेफिनेटली देयर इज मोर पावर कंजम्पशन एज कम्पेयर टू बिफोर. जब आपने वो विजेट इंस्टॉल नहीं किया था तो उससे कंपैरिजन में जब वो विजेट इंस्टॉल हो जाएगा तो इट विल कंज्यूम मोर पावर, बट दिस पावर वुड बी कंपनसेटेड बाय मेकिंग इट पार्ट ऑफ द होम स्क्रीन. तो यहाँ पर एक वो पावर कंजम्पशन का कंसर्न जो है थोड़ा बहुत एड्रेस हो जाता है. दूसरी चीज़ ये कि जो विजेट की यूआई है, बिकॉज नाउ प्रोसेस, अब ये एक यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ बन जाती है एंड दैट कम्स फ्रॉम द सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव. सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव क्या है जी कि आपके जो रिसोर्स आपको बिलोंग करते हैं इन एंड्रॉयड ओएस या किसी भी ओएस में, उनको तो आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं. लेकिन अगर कोई रिसोर्स आपके प्रोसेस को बिलोंग नहीं करता तो उसको आप यूज़ नहीं कर सकते. नाउ अब आप कहते हैं कि जी हमने पावर कंजम्पशन के लिए, पावर कंसिडरेशन की वजह से हमारा जो प्रोसेस है वो हमने होम स्क्रीन प्रोसेस का पार्ट बना दिया. अब हाउ वुड यू एक्सेस रिसोर्सेज दैट बिलोंग्स टू द विजेट? और रिसोर्सेज ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाते. एक जो बड़ा प्रोमिनेंट रिसोर्स है दैट वी यूज इज द यूआई, यूजर इंटरफेस. और अब वो विजेट का जो यूजर इंटरफेस है, बिकॉज इट हैज बिकम पार्ट ऑफ द होम प्रोसेस,
So now we will have difficulties accessing that widget UI because home process is not our own process. That is something that belongs to Android OS. So how will we handle this dilemma here? कि एक तरफ तो हमारी पावर कंसिडरेशंस है एंड वी वांट टू कंजर्व पावर, और दूसरी तरफ बात यह है कि अगर हम उसे होम प्रोसेस का हिस्सा बना दें टू कंजर्व पावर, तो वहाँ पर हमें डायलेमा ये आ जाएगा कि हमारी वो जो रिसोर्सेज उस विजिट को बिलोंग करते हैं, वी विल हैव डिफ़िकल्टी एक्सेसिंग। इस डायलेमा को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल काइंड ऑफ यूआई विच वी कॉल्ड रिमोट यूआई। और रिमोट यूआई का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप एक ऐसी यूआई डिफाइन कर सकते हैं जो कि किसी भी प्रोसेस को बिलोंग करती हो, वो आपका जो ओनर प्रोसेस है या जो अनदर प्रोसेस है उसको उसी तरीके से एक्सेस कर सकता है, जो उसी परमिशंस के साथ, उन्हीं प्रिविलेजेस के साथ एक्सेस कर सकता है जिन प्रिविलेजेस के साथ उसको ओनर प्रोसेस एक्सेस कर। जब भी हम विजिट्स लिखते हैं तो वी यूज द रिमोट व्यू यूआई so that the home process or the home screen can utilize it equally efficiently as the own widget can or we ourselves can. तो ये तो हो गया थोड़ी सी मॉड्यूलरिटीज, हमारी सिक्योरिटी किस तरीके से हैंडल होंगी, हमारी पावर किस तरीके से हैंडल होगी। नाउ टू द रियल स्टफ, दैट हाउ विल वी राइट अ विजिट। नाउ ऑन द स्क्रीन आई एम शोइंग यू हाउ विल वी बी राइटिंग एन ऐप विजिट, और यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्लाइड में आई एम शोइंग यू द कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऑफ एन ऐप विजिट। इसके दो कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल हैव टू डिस्क्राइब द टाइम लिमिट, या वो फ्रीक्वेंसी जिस पर ये विजिट वेकअप होगा। द मैक्सिमम अलाउड फ्रीक्वेंसी फॉर द विजिट्स इज 30 मिनट्स, और चूंकि हम ये XML फॉर्मेट में इसको मिली सेकेंड में डिफाइन करते हैं, सो इट इज़ 180,000 मिली सेकेंड एंड दैट इज़ द मैक्सिमम दैट इज़ फ्रीक्वेंसी दैट इज़ अलाउड फॉर अ विजिट। एट दिस टाइम इंस्टेंट्स, ये जब फ्रीक्वेंसी पूरी होगी तो देन आर ब्रॉडकास्ट रिसीवर विल बी वोक अप एंड इट विल रिसीव द डाटा एंड अपडेट आवर विजिट। तो इस पर्टिकुलर टाइम के बाद हमारा ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो है वो वेकअप होगा और हमारे विजिट्स को अपडेट कर देगा। So this is a simple configuration file that describes the widget, उसकी update frequency क्या है, how the layout would look like, and then उसकी width and height and all those things, all the properties, all the configurations are described here. अब जब हमने broadcast receivers की बात की, तब हमने कहा कि हमारा broadcast receiver जो है वो एक specific type का होगा, और वो specific type का क्यों होगा? वो स्पेसिफिक टाइप का इसलिए होगा, और स्पेसिफिक टाइप का जब मैं कहता हूँ तो उससे मतलब मेरा ये होता है कि वो जो हम एक्सटेंड का वर्ड यूज़ करते हैं, हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हो, जब हम एक्टिविटी लिख रहे हो तो हम कहते हैं एक्सटेंड्स एक्टिविटी। तो यहाँ पर जब हम ब्रॉडकास्ट रिसीवर लिखेंगे तो हम कहेंगे एक्सटेंड्स ऐप विजिट प्रोवाइडर। अब ऐप विजिट प्रोवाइडर जो है वो लिखने की हमें क्या ज़रूरत है? वाई वी वुड वांट टू एक्सटेंड इट फ्रॉम ऐप विजिट। ऐप विजिट को यूज़ करने का पर्पस ये है बिकॉज दिस पर्टिकुलर ऐप विजिट प्रोवाइडर इंस्टेंस और ऐप विजिट प्रोवाइडर क्लास और ऐप विजिट प्रोवाइडर फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स अस एक्सेस टू द मल्टीपल मेथड्स दैट कैन बी यूज्ड इन द विजिट। वो मेथड्स कौन से हैं? वो मेथड्स मैं आपको स्लाइड पे दिखा रहा हूँ। दीज आर द 4 मेथड्स दैट वी कैन यूज टू मैनिपुलेट द विजिट्स। जब हम विजिट्स के साथ काम कर रहे हैं so we can use these 4 methods to help us out. First of all is on enabled. That is whenever a widget makes its place on the screen, this function is called, or this function can be used. Then the second one is on disabled. This function is called whenever last instance of widget is removed from the home screen. The third one is on update. So whenever you want to update a widget, this function is called, and the last one is on deleted. So whenever the widget instance is deleted from the home screen, we call this function. So these are the 4 functions: on enable, on disabled, on update, and on delete are the functions that we use through app provider or app widget provider,
ताकि हम अपने जो विजिट्स हैं उनको मैनिपुलेट कर सकें. जब वो हम उन्हें प्लेस करें तो एक पर्टिकुलर फंक्शन कॉल होता है, जब हम उन्हें डिलीट करते हैं तो एक और पर्टिकुलर फंक्शन कॉल होता है. जस्ट लाइक एक्टिविटी के अगेंस्ट हमारे पास पॉज होता है, रिज्यूम होता है, डिलीट होता है, सिमिलरली हमारे पास विजिट के अगेंस्ट में भी enable, disable, update and deleted होता है. So we can use these functions when we are writing widgets and when we are playing with the widget. Now the question of how to write widgets, मैंने आपको एक एग्जांपल तो दिखा दी कि हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखेंगे. मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि हम उसके जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर है उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे. नाउ the only question that is left is how will we actually code this widget, and this I leave it to you people as an exercise that you will try to write. अगर आपने हमारी पिछली examples को follow किया है और आपने एक car tracking system लिखा है, तो I will encourage you to transform that car tracking system into a widget. That is, it will always stay on your home screen and show you the place of your car. कार के लिए तो शायद मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इट विल ऑलवेज शो यू. आप उसको फ़ोन ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड इट विल बी अ विजेट दैट विल बी ऑलवेज शोइंग यू द करंट पोजीशन ऑफ योर फोन. आई कंक्लूड माय टुडेज लेसन ऑन दिस नोट दैट आई encourage you to write this program, and if you have any problems, please feel free to contact us, and we will see that where are the problems and we will try to resolve it. Next time, we will study some more exciting concepts in Android programming. Till then, I am your instructor Abdul Aziz, signing off. Allah Hafiz.